Good morning, students of class 5th. So, today we are going to start the fourth chapter of moral value, that is Rehan the hero. Now, in this chapter, we are going to discuss about no discrimination. कि हमें discrimination नहीं करना चाहिए. Respect, हमें सबकी respect करनी चाहिए. Helping others, and we should help others. So, let's start the chapter. Rehan's father has been transferred to this town. Rehan has joined the school only a week before and is now the most talked topic. Rehan has an artificial leg. His walk is limped. He is very good in studies and all the teachers are impressed by him. Despite so many qualities, students are not friendly with him. सो रेहान के जो फादर हैं उनका ट्रांसफ़र हुआ है अभी टाउन में. तो रेहान जो है उसने स्कूल ज्वाइन किया अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं. ओके और वो उसके बारे में अब सबसे ज़्यादा बातें होती हैं क्योंकि रेहान जो है उसका आर्टिफिशियल लेग है. His walk is limped. Limped means to walk with difficulty because you have hurt your leg or foot. Means लंगड़ा के चलना बेसिकली. तो क्योंकि वो लंगड़ा के चलता है. वो स्टडीज़ में बहुत अच्छा है और जितने भी टीचर्स हैं उससे बहुत इम्प्रेस्ड हैं, बहुत खुश हैं. लेकिन इतनी सारी क्वालिटीज़ होने के बाद भी स्टूडेंट्स जो है उसकी क्लास के उसके साथ फ्रेंडली नहीं हैं. Now, Rehan is very upset today as he has overheard his classmates talking. They were discussing about him. Kia said, Rehan is very good at studies. Let's ask him to play. I don't think he can play. Ishu said, making a face. Joining the conversation, Atul said he has a problem with one of his legs. Now, Rehan जो है वो बहुत ज़्यादा upset है कि वो इसलिए ज़्यादा अपसेट है क्योंकि उसके क्लासमेट्स उसके बारे में बात कर रहे हैं ना. वो क्या डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? रेहान के बारे में. अब किया क्या बोल रही है कि रेहान जो है वो स्टडीज़ में बहुत अच्छा है तो उससे खेलने के लिए पूछते हैं. आई डोंट थिंक ही कैन प्ले. अब ईशू क्या बोल रहा है अपना फेस बनाते हुए कि मुझे नहीं लगता कि वो खेलेगा. तो कॉन्वर्जेसन को ज्वाइन करते हुए अतुल क्या बोलता है कि उसके एक लेग में प्रॉब्लम है. Ishu again said, I will not play if you make him play. Atul said, I have a doubt that he can even walk properly, so we should not ask him. Rehan got sad and sat in a corner of the classroom listening all this. अब ईशू ने दोबारा क्या बोला कि मैं नहीं खेलूँगा अगर तुम उसको खिलाओगे. तो अतुल ने क्या बोला कि मुझे डाउट है कि वो प्रॉपरली ठीक से चल भी नहीं सकता है तो हमें उसको नहीं पूछना चाहिए. तो रेहान जो है वो बहुत दुखी हो गया और एक क्लासरूम के कॉर्नर में जाके बैठ गया और वो ये सब सुनता रहा. He had thoughts of his previous school where all were his friends. He used to lunch, play and chat with them. But here everything is different. Nobody is interested in making him friend. Now अब रेहान क्या सोचने लगा अपने पहले स्कूल के बारे में सोचने लगा जहाँ पे सब उसके फ्रेंड्स थे. वो उनके साथ लंच करता था, खेलता था, बातें चैट करता था. लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग है, सब कुछ डिफरेंट है. कोई भी उसको फ्रेंड बनाना नहीं चाहता है. He left the school dejected. After he had reached home, his father noticed his sad face. He told his father about the incident that took place in the school that day. Father advised him to keep calm and give it some time. He also told him that he would definitely have many friends once his classmates understand him. Rehan asked his father to go back to the old city and old school. Father told him that it was not possible to go back as he had recently been transferred. Rehan was disappointed. Now he left the school dejected. Dejected means very unhappy or especially because you are disappointed. तो ही लेफ्ट उसने स्कूल छोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट के साथ. ठीक है जब वो घर पहुंच गया क्योंकि वो बहुत दुखी था इसलिए वो डिजेक्टेड हो गया. तो जब वो घर पहुंचा तो उसने नोटिस किया उसके फादर ने क्या नोटिस किया कि उसका सैड फेस. ठीक है कि वो दुखी है. तो रेहान ने अपने फादर को सब बातें बताई जो आज उसके साथ स्कूल में हुई. तो फादर ने उनको एक एडवाइस दी कि तुम शांत रहो और कुछ टाइम दो. ठीक है. So he also told him that he would definitely have many friends once his classmates understand him. उनके फादर ने क्या बोला रेहान को कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे एक बार अगर उसके क्लासमेट्स उसको समझे. तो रेहान आस्क्ड हिज फादर. रेहान ने अपने फादर को क्या बोला कि वापस हमें पुरानी जो सिटी में हम रहते थे वहाँ जाना चाहिए और मुझे अपने पुराने स्कूल में जाना है. तो फादर ने क्या बोला कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम वापस जाएं क्योंकि अभी रिसेंटली ही उनका ट्रांसफ़र हुआ है. तो रेहान जो है बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया, बहुत ही दुखी हो गया. द वेरी नेक्स्ट डे ही वॉज सिटिंग नियर द पूल वॉचिंग द अदर बॉयज enjoying during the swimming class. Suddenly Ishu slipped in the pool. He started shouting for help. Rehan realized that Ishu was drowning. Okay.
तो अगले दिन क्या हुआ, जो नेक्स्ट डे ही वॉज सिटिंग, तो रेहान जो है वो पूल के पास बैठा था, ठीक है, दूसरे बॉयज़ को देख रहा था कि वो इन्जॉय कर रहे थे स्विमिंग क्लास में। तो सडनली अचानक से क्या हुआ, ईशू जो था वो पूल में गिर गया। फिर वो चिल्लाने लगा, किसके लिए, हेल्प के लिए, मदद के लिए। तो रेहान को रियलाइज़ हुआ कि ईशू जो है वो डूब रहा है, ड्राउनिंग मीन्स डूब रहा है, एंड ही डिडंट हैव द सेफ्टी ट्यूब, और उसके पास सेफ्टी ट्यूब भी नहीं है। एज well, Ishu was very close to the place where Rehan was sitting. Rehan jumped into the pool and pulled him out. Everyone was surprised. They felt a sigh of relief when Ishu was all right. Everyone was thinking that how Rehan could swim. Atul surprisingly asked him, "How can you swim?" सो ईशू जो था वो बहुत ही क्लोज था जिस प्लेस पे रिहान बैठा था। तो रिहान जो है उसने जंप किया पूल में और उसको बाहर निकाल लिया। तो सब लोग सरप्राइज हो गए। दे फेल्ट अ साई। साई मीन्स टू लेट आउट अ लॉन्ग डीप ब्रेथ दैट शोज यू आर टायर्ड सैड। ओके, सो साई मीन्स कि एक लंबी गहरी सांस लेना, ठीक है। तो उन्होंने लंबी गहरी सांस ली, रिलीफ लिया कि जब ईशू उन्हें क्या हुआ कि उन्हें देखा कि ईशू जो है वो बिल्कुल सही है। सो एवरीवन, सब लोग क्या सोच रहे थे कि रेहान जो है वो कैसे स्विम कर पाएगा। तो अतुल जो है वो सरप्राइजिंगली उसने क्या पूछा कि हाउ कैन यू स्विम, तुम कैसे स्विम कर सकते हो। नाउ रेहान रिप्लाइड, आई हैव लर्न स्विमिंग फॉर 2 years. वाई weren't you swimming then? asked Atul. I forgot my swimwear at home today, said Rehan. Ishu apologized to Rehan. Rehan asked the reason for it. Ishu said, I'm sorry as I was not friendly. I didn't play with you, but you rescued me from drowning, hence saving my life. Rehan said, don't be sorry and let's forget all this and be friends. All the classmates gathered around Rehan and discovered a new hero among them. After that, all of them became friends with Rehan. Rehan was a very happy and remembered his father's words. नाउ रेहान जो है उसने रिप्लाई किया कि मैंने स्विमिंग सीखी है 2 years के लिए। सो वाई वरंट यू स्विमिंग देन, आस्ट अतुल। तो अतुल ने क्या बोला कि फिर तुम स्विमिंग क्यों नहीं कर रहे थे। तो रेहान ने क्या बोला कि मैं अपना स्विमवेयर घर पे ही भूल गया आज। तो ईशू ने माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज़ किया रेहान को, ठीक है, माफ़ी मांगी रेहान से। तो रेहान ने रीज़न पूछा माफ़ी का। तो ईशू ने बोला कि मैं इसलिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडली नहीं था और आई डिडंट प्ले विद यू, और हम तुम्हारे साथ खेले भी नहीं, बट यू रेस्क्यूड मी। रेस्क्यूड मीन्स टू सेव समबडी, किसी को बचाना, लेकिन रेहान ने उसको बचाया डूबने से, हेंस उसकी लाइफ को बचाया। तो रेहान ने बोला कि सॉरी मत बोलो और सब कुछ भूल जाओ और फ्रेंड्स बन जाओ। तो जितने भी क्लासमेट्स थे वो सब वहाँ पे आ गए रेहान के पास और उन्होंने उसको एक नया हीरो समझा कि वो एक न्यू हीरो है क्योंकि उसने लाइफ बचाई थी। तो इसके बाद क्या हुआ, वो सब फ्रेंड्स बन गए रेहान के। रेहान जो था वो बहुत खुश हो गया, उसने अपने फादर के वर्ड्स को याद किया क्योंकि उसके फादर ने बोला था अभी वेट करो, तुम्हारा भी एक टाइम आएगा जब तुम्हारे सब फ्रेंड्स बनेंगे। सो चिल्ड्रन, व्हाट मॉरल हैव वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? We all are different, so we should respect and accept each other. We should never underestimate anyone on the basis of his appearance or disability. तो हम सब क्या होते हैं, हम सब अलग होते हैं, हर रिस्पेक्ट में, हर चीज़ से हम एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। वी आर ऑल डिफरेंट, सो वी शुड रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट अदर। तो हम जैसे सब एक दूसरे से अलग होते हैं तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरों की, और जो जैसा है उसको उसके अकॉर्डिंग उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अंडर एस्टिमेट मीन्स टू थिंक दैट समबडी और समथिंग इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। हम ये सोच लेते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ को हमें नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए, ठीक है, उसकी अपीयरेंस के बेस पे या डिसेबिलिटी। सो वी शुड रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट ईच अदर।